Hello and welcome everyone. My name is Atish Mathur and this is the Magna Carta Mains for 2025. We're on lecture number 8. In continuation with what we've studied in the previous lecture, we ended off with anti-defection law. The MC and the mains concise notes are already there on your Telegram channel for everything that we're going to be covering in this lecture. So we'll pick it up from there. The larger idea is that we've divided the Parliament Representation of People's Act and the Election Commission into broadly two parts: legislatures and elections. And in the lecture before this, we've done a detailed PYQ analysis and we've done anti-defection law. Dominantly, anti-defection law becomes important this year because anniversary year, and there have been Supreme Court observations on how there should be a timeline, at least a reasonable one, with regards to the speaker deciding on questions of anti-defection or questions of defection. Now we will move to the next set of subtopics. Please remember the incremental approach. Members, presiding officers, houses, parliamentary committees. As we keep going ahead, the issues start adding up. They cumulatively become important like an arithmetic progression. So let's continue. Now we start with immunities and privileges. देखो, immunities and privileges was asked previously in the year 2014. Now in 2024, last year, there was a Supreme Court judgment which basically gave an exception to the immunities and the privileges that are given to the members of parliament. Let's take two steps back and let's understand exactly what this is. See, to put it very simply, for a common citizen, you have defamation. For courts and judges, you have contempt. And for legislatures and legislators, you have privileges or contempt of the house. This is contempt of court. राइट? कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी की रेप्यूटेशन खराब करते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल तो उससे डेफेमेशन कहते हैं. आप कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन या किसी स्पेसिफिक जज की तौहीन करते हैं, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं. आप एक लेजिस्लेटर या एज अ हाउस कंप्लीटली उसको अंडरमाइन करते हैं तो उसे प्रिविलेजेस, उसे कंटेम्प्ट या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं. अब कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है दैट अंडरमाइनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स or the legislature requires some special protections that have to be given to the people. This is nothing but an application of heightened equality. कि सब बराबर नहीं. When an army regiment walks into a hostile area and ends up dealing with a hostile terror group and in crossfire ends up killing the terrorists in the terror group, what they've done is in the course of their duty. उनको अपना काम करने के लिए इस तरह से एक्सेप्शन देना पड़ेगा ताकि वो अपना काम कर सके. The same logic applies to parliamentarians also. That is the story and how it all begins. तो हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? हम इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. Parliamentary privileges are those which are enjoyed by the parliamentarians and the house,
द कमिटीज कलेक्टिवली इन प्रिविलेजेस के बिना वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। उनका क्या काम है? टू इंडिपेंडेंटली, टू एक्यूरेटली, टू इम्पार्शली, टू ऑब्जेक्टिवली डू व्हाट इज इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। अब उसके लिए यू विल हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। So there are some special weapons that have to be given to you in the form of immunities or privileges ताकि आप अपना काम कर सकें। तो ये कहानी एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। हिस्टोरिकली अगर इसको आप देखना चाहें, the story actually starts in medieval England where legislators were given these kind of privileges so that they would not be arrested for what they did on the floor of the house. That's where the story largely began from. तो एक हमारा डेफिनेशन हो गया, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, और एक हमारा कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट करंट अफेयर्स का हो गया। केस का नाम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसमें एक 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट overruled Narasimha Rao versus state in 1998 and the bench unanimously held कि हाँ, आपको एज लेजिस्लेटर्स, चाहे आप एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, आपको कुछ प्रोटेक्शंस हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ इम्यूनिटीज हैं, इसको बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इसकी आड़ में आप करप्शन नहीं कर सकते, आप ब्राइबरी नहीं कर सकते। ये आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ का भी पर्पस अगर आप सोचो तो यही था, टू प्रिवेंट करप्शन इन वोटिंग, टू प्रिवेंट करप्शन इन पॉलिटिकल लॉयल्टी। At the end of the day, you are trying to secure the sanctity of the house. यही इस जजमेंट में कहा गया। अब 2014 में क्वेश्चन आया था, why have we not codified it? So we will have to go beyond just why have we not codified it and look at an overall analysis of immunities and privileges. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस को एक सिंपल से कॉन्सेंट्रिक सर्कल वेन डायग्राम में समझाएंगे। क्या मतलब है? ऑल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, बट ऑल कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज नॉट नेसेसरीली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जब कोई भी, चाहे एमपीज खुद, वो अगर डायरेक्टली हाउस या मेंबर्स की राइट्स वायलेट करते हैं तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज कोई भी एक्शन किसी भी तरह से जो हाउस को, कोई भी कर सकता है वो, जो हाउस को अंडरमाइन करे, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जनरली मेंबर्स करते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कैन बी डन बाय एनीबडी। तो एक छोटे से डायग्राम से हमने समझा दिया, एंड दैट सॉर्ट ऑफ सेट्स द बॉल रोलिंग। देन कम्स द लार्जर क्वेश्चन कि हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं। इसके मैंने आपको 4 बेसिक पॉइंट समझाए हैं। What is the rationale behind having immunities and privileges for our legislators? The first point is, if you do not give them the autonomy so that they can perform their functions as legislators, उनको हाउस में किसी चीज का डर नहीं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बहुत सारी बॉडीज जो चेक एंड बैलेंस का फंक्शन करती है, उनका हम रिमूवल बड़ी डिफिकल्ट मेजॉरिटी में रखते हैं। उनके अलाउंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज हम सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि उन्हें किसी चीज़ का डर ना रहे, उन्हें अपने काम करने में कभी ये ना सोचना पड़े कि भाई अगला हमारा बजट कहाँ से आएगा या मेरी अगले महीने की तनख्वाह कहाँ से आएगी। फॉर यू टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, you must always be given some form of constitutional, statutory or otherwise protection. That is the first reason. Second, technically आप तो फिर इनको अलग से ट्रीट कर रहे हो। वैसे इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस क्या है मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप हाउस में आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, पूरी आज़ादी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ
Does a citizen have an unconditional right to speech? No. We all know Article 19 Clause 2, which is a reasonable restriction to 19(1)(a), has one of the most detailed set of reasonable restrictions. लेकिन यहाँ आप अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हो। इसका मतलब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एक ऑर्डिनरी सिटीजन को अलग अलग ट्रीट कर रहे हो। अब ये तो इक्वालिटी का वायलेशन हुआ। लेकिन ये वायलेशन क्यों नहीं हुआ? अगर हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि हमारे एमपीज और एमएलएज एज अ ग्रुप परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन, और उनको ये प्रोटेक्शन देने से वो फियर्सली और इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो इसीलिए वो जस्टिफाइड है। Thirdly, the ability to speak without the fear of any intimidation or punishment whatsoever. अगर ये नहीं होगा तो आपकी पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी जनरली खतरे में हो जाएगी। एंड फोर्थली, a breach of privilege is also a contempt of the house, but the reverse is not true, जैसे मैंने आपको समझाया। अब अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको 3 डायग्राम्स दे दिए हैं, आप ये तीनों डायग्राम बड़े आराम से बना सकते हैं। पहला, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है। और तीसरा, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है ना। व्हेन वी जनरली लुक एट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज अ होल, हम हमेशा ये देखते हैं कि कोडिफाइड का मतलब क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो लिखा हुआ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो एक जगह लिखा हुआ है। इट इज ए सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट which makes the constitution a superior law, a heightened law than any other law. That is the basic process, that is the basic concept behind it. तो जब हम ये शब्द कोडिफिकेशन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, हैव यू कोडिफाइड इट इन वन सिंगुलर डॉक्यूमेंट। ये आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। देखो, प्रिविलेजेस के साथ क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। हमने बहुत जल्दीबाजी में, क्योंकि हमारे पास टाइम तो ज्यादा था नहीं, तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे और हम इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस तक पहुंचे, और हमको ये पता है कि ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, वो थोड़ा सा ब्रिटिश सिस्टम पे ही बेस्ड है, तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि जब तक पार्लियामेंट अलग से कोई लॉ ना बनाए, तब तक जो हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रिविलेजेस हैं वही यहाँ अप्लाई होंगे। फिर आगे चल के हमको याद आया कि यार हम तो उनसे कोई नाता नहीं रख सकते, तो हमने वो हाउस ऑफ कॉमन्स को डिलीट करके बड़े स्मार्टली कहा कि जो प्रिविलेजेस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, वो कंटिन्यू किए जाएंगे। तो बेसिकली बात वही हुई। वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ दीज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज कि ये कहीं एक जगह नहीं लिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, कुछ चीजें हैं हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में लिखी हैं, कुछ हाउसेस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, कुछ हमको सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू बताते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम कन्वेंशंस के थ्रू कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस के थ्रू कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, चाहो तो कोड जरूर करना, जिसमें हमारे एमपीज और एमएलएस को प्रिविलेजेस दे रखी हैं। What is absolutely also clear is that the privileges that are given to your MPs, MLAs, MLCs are exactly the same, कोई फर्क नहीं, because at the end of the day they are elected representatives. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है, अंडर आर्टिकल 122 the court cannot inquire into any proceedings of the house. ये आपने डिफेक्शन में भी देखा होगा कि स्पीकर के डिसीजन के बाद आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन कोर्ट इसमें नहीं घुस सकता कि स्पीकर जब डिफेक्शन डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने क्या प्रोसीजर अपनाया, उन्होंने कैसे कार्रवाई करी।
सिमिलरली अंडर आर्टिकल 361A भी है कि अगर कोई जो सच्ची सच्ची बात पार्लियामेंट में हुई है उसको एज इट इज ट्रू प्रोसीडिंग्स पब्लिश करता है, तो उसको भी उस प्रोसीडिंग्स के लिए कोई हड़काया नहीं जाएगा, कोई कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब पार्लियामेंट में अगर किसी ने एक दूसरे को गाली दे दी और वो उस चीज को रिपोर्ट कर रहा है एज इट इज, और वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, उसको एक्सपंज नहीं किया गया है, तो उसने अपने न्यूज़पेपर में उसने उसको टेलीकास्ट कर दिया, तो उस पे कोई सेंसरशिप वाले कानून नहीं लगेंगे कि आपने टीवी पे गाली कैसे दिखा दी, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का ट्रू पब्लिकेशन कर रहा था, विच इज अंडर आर्टिकल 361 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे दे रखा है। सिमिलरली द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो एक ब्रिटिश लॉ है, उसमें लिखा है कि सेशन के 40 दिन पहले, ड्यूरिंग द सेशन और सेशन के 40 दिन बाद आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, कन्वेंशंस हैं कि हाउस के बारे में बिना हाउस की परमिशन के आप कोई गवाही नहीं दे सकते, कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है ये हमारे कन्वेंशंस हैं, प्रैक्टिसेस है जो बहुत समय से चलती आ रही है। ओवर एंड अबव दिस यू हैव सर्टन रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसमें लिखा है कि भाई आप चाहो तो कुछ स्पेशल गाइडलाइंस दे सकते हो कि भाई अगर अरेस्ट हुआ है तो आपको इंटिमेट करना ज़रूरी है। दूसरा, आप एविडेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरा, आप ज़बरदस्ती किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विटनेस नहीं बना सकते। चौथा, अगर आप चाहो तो किसी पार्लियामेंट्री सिटिंग में आप नहीं चाहते हो कि विजिटर्स बैठे, स्ट्रेंजर्स बैठे, तो उनको आप हटा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर जजमेंट्स फॉर एग्जांपल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है MSN शर्मा का, जिसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि आप अगर चाहें तो पार्लियामेंट अपनी किसी भी प्रोसीडिंग्स का पब्लिकेशन रोक भी सकता है, और अगर रोक दिया और उसके बाद अगर आप उसको पब्लिश कर रहे हैं तो फिर आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहे हैं, वॉट एवर द केस माइट बी डिपेंडिंग ऑन हु डज इट। तो एक तो ये हो गया। तो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं दे लार्जली आर इन दैट डोमेन इन दिस इकोसिस्टम। फिर आता है आपका कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट बहुत ही ओपन एंडेड है। इसमें आप किसी मेंबर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ गलत एविडेंस दे रहे हैं, आप अगर हाउस के बारे में कुछ कह रहे हैं, चेयरपर्सन के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप कमिटीज पे बिना रिलीज हुए हुए कुछ कमेंट कर रहे हैं, आप अगर कोई सीक्रेट सिटिंग है उसको पब्लिश कर रहे हैं, आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हाउस की गरिमा कम हो रही है। देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर न्यूज़पेपर्स हैव रिटन एडिटोरियल सेइंग XYZ presiding officer is a coward, that house is incompetent. All of this comes under contempt of the house. अब जनरली क्या होता है, there is a certain process involved. प्रोसेस क्या है? डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कहानी शुरू होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। प्राइमा फेसी वो देखते हैं कि हाँ भाई कुछ प्रिविलेज की बात है भी कि नहीं है। कोई उनको रेफर भी कर सकता है कंप्लेंट, उनके पास सुओ मोटो पावर्स भी है। फिर वो जनरली प्रिविलेजेस कमिटी को रेफर करते हैं। प्रिविलेजेस कमिटी अपनी रिपोर्ट लेके आती है, हर हाउस की अपनी प्रिविलेजेस कमिटी होती है, और वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ऐसा था, नहीं था, क्या ये कंडीशंस मीट हुए, नहीं हुए, वॉट एवर द केस माइट बी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब डिसाइड करने वाली सोल अथॉरिटी हाउस और सिर्फ हाउस है, बिकॉज द गार्डियन ऑफ प्रिविलेजेस इज द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज वी विल कंपेयर इट टू द यूके इन सम टाइम। अब आपके पास खुली छूट है, आप किसी भी तरह की पनिशमेंट्स दे सकते हो। अगर प्रिविलेज ब्रीच करने वाले अपने ही खुद के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, फिर तो हम क्या ही करें, फिर तो हम उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उनको एक्सपेल भी कर सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, 90-95% ऑफ द केसेस हम अपॉलॉजी मान के बात खत्म कर देते हैं, एंड इट कैरीज ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
बट द आइडिया हियर इज दिस, आप किसी को फाइन कर सकते हो, किसी को जेल भेज सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, बिकॉज देयर इज अ ब्यूटिफुल लीगल कॉन्सेप्ट हिडन समवेयर। ध्यान से देखना। सी, it always goes down to the basics. And what are our basics? We are a written constitution, which means the powers are limited of the organs of the state, the legislature, the executive and the judiciary. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है हमारी, वो पार्लियामेंट एक लिमिटेड बॉडी है, उसके पास अनकंडीशनल पावर्स है नहीं, बिकॉज यू आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट फॉर एग्जाम्पल जिन चीजों पे लॉ बना सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बना सकती है। सही बात है। आप बहुत ध्यान से देखना, यूके में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन एज सच नहीं है। तो इसका मतलब यूके में हम बड़े प्यार से कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी है, पार्लियामेंट के ऊपर कुछ नहीं है, राइट? तो पार्लियामेंट अपने आप में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी तो बन जाती है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है और वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉर्ड है? नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट लिमिटेड है। That is the fundamental difference between how immunities and privileges actually pay out in England versus how they play out in India. Because what happens in India is the powers of the parliament are limited, and India has not had the time to codify it. Our constitution has been very clear that the parliament, until they make laws on privileges, we will follow British conventions. It's that simple. So an unwritten constitution makes the parliament supreme and also makes the parliament a court of record. In India, our Supreme Court and High Courts are court of record, which is why they get blanket powers of contempt of court. The same applying to the parliament is constitutionally very fragile, because the parliament in itself is limited. They do not have unlimited powers. तो जब आप एक लिमिटेड बॉडी को अनलिमिटेड पावर्स देते हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जो आपको यहां देखने को मिलेगा। Which is why the role of the judiciary comes in, and you will see certain interpretations that have been given by the courts. अब ये इंटरप्रिटेशंस एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि कोर्ट्स ने क्या क्या कहा, क्यों क्यों कहा और कैसे कहा। देन वी लुक एट आवर इश्यूज एंड वी लुक एट आवर सॉल्यूशंस। सो first things first, MSM Sharma versus Shri Krishna Sinha. This is a very famous Blitz magazine, a Searchlight case and so on and so forth. इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये एक्चुअली इशू क्या है। ये इशू ये है, देखो, आर्टिकल 19 clause 1 clause A is for all citizens. And what do all citizens get? The freedom of speech and expression. But it is not an unlimited right. It is subject to reasonable restrictions under Article 19 Clause 2. Decency, morality, interest with foreign sovereignty, foreign interests or interests affecting foreign countries. In fact, defamation and contempt of court is a reasonable restriction given here itself. Very interestingly, privileges is not. दूसरी तरफ, for example, you have Article 105, जो आपको एक प्रिविलेज दे रहा है। क्या प्रिविलेज दे रहा है? प्रिविलेज दे रहा है कि आपको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जिसको बोलना है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू हैव द फ्रीडम ऑफ वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आपको कोई नहीं रोकेगा। भाई ये तो हमारे MP और MLAs के लिए है,
जो एट द एंड ऑफ द डे कम से कम सिटीजन्स होने चाहिए। यहां पे कोई इफ बट नहीं है। जब तक कोई पार्लियामेंट लॉ ना बना ले, जो अभी हमने लॉ नहीं बनाया, दिस सीम्स टू बी टेक्निकली अनकंडीशनल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में एक पार्लियामेंटेरियन को, एक लेजिस्लेटर को, एक आम सिटीजन से क्या ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट MSM Sharma versus Shri Krishna in 1959 had said. Very very important judgment। इसी से बाकी सब कुछ क्लियर होता है। दूसरा, this is a minor judgment but adds a lot of finesse to our answers। Dr. Jatin Chandra Ghosh versus Hari Sadhan 1961, which basically says if you're doing something in a private capacity, then you can't claim privilege or the breach of it eitherwise। आप घर में बैठ के कुछ कर रहे हो, उससे हमको क्या लेना देना। देन कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमको एग्जाम में हर हालत में लिखना है, विच इज केशव सिंह ऑफ 1964। नाउ इन केशव सिंह ऑफ 1964 द कोर्ट सेड योर immunities and privileges are not absolute in the sense that the court can judicially review them। तो इसी पॉइंट को हम रिसाइकल करके जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। बट द आइडिया हियर इज दैट योर प्रिविलेजेस एज लेजिस्लेटर्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिविलेजेस का इतना फायदा उठा लो कि आप किसी और की फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, या इतने एक्सेस में कर रहे हो कि आप जो जिस रीजन से आपको प्रिविलेजेस दी गई थी वो रीजन ही फ्यूटाइल हो रहा है। हमने तो आपको प्रिविलेजेस इसलिए दिए सो दैट यू कैन यूज दीज प्रिविलेजेस टू वर्क इम्पार्शली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। दैट इज व्हाई यू वर गिवन दीज प्रिविलेजेस। आप उसका इस्तेमाल किसी और ही चीज के लिए कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के लिए कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल वोट फॉर कैश, कैश फॉर वोट ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। And that is exactly what was the starting point in the Keshav Singh case। Then in Raja Rampal versus Speaker Lok Sabha, court said, देखो हम आपको, and this is a limitation actually, अगर हाउस आपको प्रिविलेजेस की वजह से डिस्क्वालीफाई करता है, एक्सपेल करता है, जैसे डिफेक्शन के केस में भी है, इट डज नॉट मीन दैट यू कांट कम बैक। It does not mean that you can't refight, recontest, get yourself re-elected and come back to the house। That is not the case at all। And then finally you have the Sita Soren case, and this is again very important to be quoted, where the court has given basically two tests। जैसे आधार में proportionality test दिया था, वैसे ही सीता सोरेन में there is a two-fold test that the court has given। The first is, आप जिसके लिए इम्यूनिटी क्लेम कर रहे हो, दैट एक्ट शुड बी रिलेटेड टू अ फंक्शन ऑफ द हाउस। पहली बात तो आप जिस चीज के लिए कह रहे हो कि मेरे को इसके लिए मत पूछो मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, जो मुझे, जहां मैं अपनी मर्जी जता रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं अपनी मर्जी जता रहा हूं, वो हाउस का एक फंक्शन है, उसको पूरा करने के लिए जता रहा हूं। दैट इज द बेसिक आइडिया। The second test that the court had laid down was this, that immunity should have a functional relationship with the discharge of duty। इसका मतलब कि आप जो इम्यूनिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो इम्यूनिटी आपके काम से भी रिलेटेड होनी चाहिए, और पहला टेस्ट ये कहता है कि हाउस के फंक्शन से भी रिलेटेड होनी चाहिए। अब इसमें आप ब्राइबरी लगा के देख लो कि भाई आप कह रहे हो कि अच्छा चलो मैंने वोट करने के लिए पैसे लिए, लेकिन वोट तो एक हाउस का फंक्शन है, और डिलीजेंटली और इम्पार्शली वोट करना बिल्कुल आपका हक बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो इट फेल्स ऑन बोथ ऑफ दीज टू टेस्ट्स। तो हमारे पूरे इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस फ्रेमवर्क में बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं? आई हैव लिस्टेड डाउन 7 बेसिक इश्यूज। देखो, सबसे पहले कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस।
Now, please understand what is the issue here and why are we stuck with it. See, जब तक हम एग्जैक्टली क्या प्रिविलेजेस हैं, किसको मिलती हैं, किस हिसाब से मिलती हैं, जब तक हम ये एक जगह नहीं करते, तब तक कभी ना कभी कोई ना कोई इशू होता ही रहेगा. See, the challenge with finding legal solutions to political problems is a legal solution will never ever be a universal answer to a political problem. जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ में आप कितना भी कानून बना लो, आप अपॉर्चुनिज्म को एलिमिनेट नहीं कर सकते. और कोडिफिकेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लोकसभा की एक कमेटी ने ही बोला था कि कोडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. हालांकि प्रेस काउंसिल और पीआरएस वगैरह ने बहुत रेकमेंड किया है कि आपको कोडिफाई करना चाहिए. लेकिन जो हमारी लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी है 2008 में, उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि हम कोडिफाई नहीं कर सकते या हमें कोडिफाई करना पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? पहला, आप किस किस तरह से हाउस और मेंबर की बेइज्जती कर सकते हो, ये तो एक अनलिमिटेड तरीके है. आप कितने लिख लोगे? दूसरा, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हियर. द प्रॉब्लम इज दिस. देखो, राइट नाउ your immunities are protected in the constitution and they're unlimited and they're unconditional. कल को आप एक लॉ बनाते हो जिसमें सारे इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस आप लिख देते हो. ये जो आप लॉ बनाओगे, दिस विल बी एन ऑर्डिनरी लॉ. ये ऑर्डिनरी लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा. तो या तो इन पेरेंट प्रोविजंस को ठीक करो, इन पेरेंट प्रोविजंस को फंडामेंटली चेंज करो, नहीं तो एक ऑर्डिनरी लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अलग नहीं जा सकता ना. बिकॉज यू कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस वुड रिक्वायर एटलीस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368. पहले चेंजेस यहां करोगे, फिर आपको जो भी लिस्ट विस्ट बनाना है वो बना लेना. जब तक ये नहीं करते तब तक आप कोई कोडिफिकेशन कर ही नहीं सकते. जैसे एनजैक के केस में भी आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा कि अच्छा हम एक एनजैक लाएंगे, फिर आप एक एनजैक एक्ट लाते हो फॉर फर्दर डिटेल्स. कहानी सेम टू सेम इधर यही है. विच इज वाई देर इज ए लीगल हर्डल टू द कोडिफिकेशन प्रॉब्लम. जो आपका 2014 का क्वेश्चन था, उसका एक्चुअली आंसर ये है that one, you cannot enumerate all the instances, and two, and this is a very nuanced legal point, I understand, but the point still remains intact. If you have a constitutional unwarranted protection, then an ordinary law cannot take that protection away because it would undermine constitutional supremacy, and constitutional supremacy has been recognized as basic structure, which is why you are now stuck in a vicious loop. Which is why codification might not necessarily be the right answer or the outcome to these things. तो पहली बात तो ये कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, एटलीस्ट आप एक जगह लिखने की कोशिश करें, या एटलीस्ट ट्राई टू मेक दोज इनकम्पासिंग चेंजेस. नो डाउट ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे एम्बिग्विटी कम हो जाएगी कि क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस में पैम्फलेट फेंकना, क्या ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है कि नहीं, क्या हाउस में एक पटाखे फोड़ना है कि नहीं है, क्या हाउस में किसी को चिल्ला के स्लोगन देना, गाली देना वो है कि नहीं, कितना लिख लोगे. एंड ऑल्सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द एज ऑफ हाउ एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया, you also have to modernize your privileges to reflect those opinions. फंडामेंटली प्रॉब्लम वहीं पे आके रुक रही है. एंड दिस विल देयरफॉर क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस. सेकंड, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी फंडामेंटल राइट्स के साथ भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्रीडम ऑफ वोट है, एंड सिविल प्रोसीजर कोड में आपको फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट भी दे रखा है.
लेकिन आर्टिकल 22 भी तो है जो आपको प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है। तो इसकी रिलेशनशिप क्या बना रहे हो? हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस दिस? इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लीगल कॉन्वोल्यूशन सा हो गया है व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। थर्ड, क्योंकि यू हैव द फ्रीडम टू डू समथिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बेसिकली यू हैव लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। अब जब मैंने बोल ही दिया कि आपको हाउस में जो बोलना है बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट जुडिशरी नहीं देख पाएगी ना। आपने उन यू हैव क्लिप देयर विंग्स। फोर्थ, इसका कई बार एडवांटेज भी लिया जाता है। इसका कई बार ये भी हो सकता है कि आप एक्सेसिव पनिशमेंट्स दे दो, और क्योंकि हाउस डिसाइड कर रहा है, एंड इट इज ऑलवेज अ मेजोरिटी दैट रन्स इन अ सर्टेन वे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अपने बाइसेस होते हैं, ये मैटर पॉलिटिसाइज भी होता है। और कई बार इसका एक्सेसिव यूज होके इन की सेशंस या इन की सिटिंग्स आप मेंबर्स को सस्पेंड कर देते हो, जैसा किया भी है कई बार। द प्रीवियस लोक सभा हैज हैड द मोस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। एंड फंडामेंटली immunities and privileges therefore become an issue of separation of powers। है तो ये क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजन ना, लेकिन डिसाइड हाउस ही कर रही है जिसके पास एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तक की पावर्स नहीं है, वो स्टेटस नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? द फर्स्ट इज ट्राई इन सेटिंग अप अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमीशन। एक इनोवेटिव सा आंसर है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, करिए। जितना हो सके प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की कोशिश करिए। तीसरा, अगर सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग हो सकती है, जजेस की ट्रेनिंग हो सकती है, आर्म्ड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो सकती है, तो भाई लेजिस्लेटर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती है? 100% होनी चाहिए। और जितना हो सके try and use the judiciary to at least have their expertise in interpreting these privileges। अब फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है तो क्या इसका मतलब ब्लैंकेट फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है? क्या इसका मतलब हाउस के अगर 10 दिन पहले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर्डर करता है फिर क्या करेंगे? स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया। ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई पार्लियामेंट्री इशू डिस्कस करेंगे, अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज ट्राई एंड मेक पार्लियामेंट्री कमिटीज बेटर, जो बेटर रिव्यू कर सके, बेटर एग्जामिन कर सके। एट द एंड ऑफ द डे ये सब इसलिए होता है बिकॉज इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हाउस में यू विल सी जनरली एन ओवरलैपिंग इशू, तो उसको अगर हम सॉल्व कर सके तो नथिंग लाइक इट। एंड देन ट्राई एंड रिस्पेक्ट द राइट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब इसका हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या देना है? इसका हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये देना है दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये ऑर्नामेंटल नहीं है, ये ज्वेलरी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, जो पहले होता था, ये कोई परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाली बात नहीं है। द वर्डिंग्स आर वेरी केयरफुली इम्बाइब्ड। जब मैं ये लिखता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट ऑर्नामेंटल रेलिक्स ऑफ अ बायगॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ईरा। इसका मतलब ये कोई पुरानी बातें नहीं है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कोई इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट नहीं है कि आप पार्लियामेंटेरियन बन गए तो आपको ये खास पावर दी जा रही है। पावर इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपके पास ये काम है। दिस इज व्हाई इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल एथिकल डिलेमा। ये तो वही बात होगी ना कि हम सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं आर्टिकल 311 में, ताकि वो अपना काम फियरलेसली कर सके। हमारे एंटी करप्शन लॉज में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रायर कंसेंट, ताकि आप अपना काम कर सके, आप पे फ्रिवलेस लिटिगेशन ना हो। ये इंडिया आपको बचाने के लिए नहीं है, ये आप जिस चीज का हिस्सा है जो आपसे बहुत बड़ा है वो उसको बचाने के लिए है। दीज आर इंस्टीट्यूशनल गारंटीज। एंड ये क्यों बनाई है? टू डिजाइन, दे हैव बीन डिजाइन टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी एज अ होल। And go back to your basics. In a constitutional democracy governed by the rule of law, parliamentary privileges must serve democracy. They must be in the aid of it. They must not dominate it. That is the basic idea. That is the basic principle behind it. So, एक हमारा ये टॉपिक था
जो मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वी हैड टू कवर इट प्रॉपरली। अब जब ये थोड़ा सा कवर हो गया है, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई रीजन होगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोज रेयर थिंग्स दैट हैज नेवर बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन द मेंस एग्जाम। तो कई बार यूपीएससी कोने कोने से कुछ उठा के पूछ लेती है जो उन्होंने आज तक नहीं पूछा होता है। तो शुरू करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर क्वेश्चन आएगा भी, तो क्वेश्चन आएगा कि भाई होता क्या है, क्यों है, जिस तरह से हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एग्जीक्यूट करते हैं उसमें दिक्कतें क्या हैं, एंड हाउ कैन यू लार्जली रिफॉर्म इट, मेक इट बेटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो, सबसे पहले तो हमारा एक स्टीरियोटाइप होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि इफ यू मीट समबडी हु सेज आई एम इन पॉलिटिक्स, आपका सबसे पहले हमारा दिमाग चलता है अरे अरे गलत काम कर रहे हैं। बट यू हैव गुड पीपल इन पॉलिटिक्स एज मच एज यू हैव गुड पीपल एवरीवेयर। So the same thing sort of applies here also. What therefore applies here is, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर से गलत शब्द नहीं है। प्रॉफिट का मतलब मुनाफा नहीं है। प्रॉफिट का मतलब है आपको अपने काम करने के लिए कुछ रिटर्न में दिया जा रहा है। प्रॉब्लम है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा है तो। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। कॉन्सेप्चुअली देखो इशू क्या है। गोइंग बैक टू द बेसिक्स, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर में से ही हमारी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव निकल के आती है, एंड द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव इज देयरफॉर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अब हमने हमारे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव पे एक कैप लगा रखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने प्रीवियस क्लास में करा था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हमने ये भी एक नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे कैप लगा दिया है कि इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। वाई लोकसभा? बिकॉज वी हैव a federal parliamentary democracy, so therefore they are collectively responsible to the lower house, which is the Lok Sabha. अब मंत्री तो इतने ही लोग बन सकते हैं, लेकिन चुनाव में मेहनत बहुत लोगों ने करी है। अब मंत्री नहीं बन सकते तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो ऑप्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे खास एमपीज को कुछ पोस्ट देनी शुरू कर देंगे। अब ये फंडामेंटली ऑब्जेक्शनेबल है, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि एमपी अगर सरकारी पोस्ट में बैठेंगे तो फिर सरकार पे सवाल कौन उठाएगा? इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी कैसे रहेगी हाउस में? और दूसरी तरफ एमपी को खुश करना है। तो सरकारें क्या करती है, एक लॉ बनाती है और इसमें कुछ ऑफिस लिखने शुरू करती है और कहती है कि ये ऑफिस हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जेम्प्टेड है। अगर आप इसमें से किसी भी ऑफिस, कोई भी पोस्ट आपको दी जाती है, तो आप पे ये दोगलापन का आरोप नहीं लगेगा, आप पे ये डुअलिटी का आरोप नहीं लगेगा। आप तभी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, द चेयरपर्सन इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बट इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड। सिमिलरली एक बहुत बड़े लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ एग्जेम्पशंस है और कुछ तो नेसेसरी एग्जेम्पशंस है। भाई इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एमपी ही तो मिनिस्टर बनेगा, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जेम्प्ट करके रखा है। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी प्रिंसिपल अराउंड इट, which is why my introduction here is fairly simple, which is the concept of office of profit therefore lies at the confluence of constitutional morality, political ethics, and the doctrine of separation of powers. ठीक है? अब
इट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो। एग्जेम्पशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, इसमें बहुत चेंजेस भी करे। एंड यू हैव अ स्टैंडिंग कमिटी हुज जॉब इज टू एग्जामिन कि कौन कौन से ऑफिसेज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर सवाल उठता है कि ये सब हमने किया क्यों? एज आई वाज टेलिंग यू, देयर आर टू फंडामेंटल रीजंस एज टू व्हाई समवन डज इट। वन is separation of powers. Separation of powers between the legislature and the executive. Two, preventing the possibility कि कहीं आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जाए, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको ये चेक करना है कि भाई बीएसएनएल अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या हमें जरूरत भी है बीएसएनएल की नहीं, और आप ही को हमको बीएसएनएल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के बिठा देंगे, तो फिर आप अपना काम एज अ पार्लियामेंटेरियन कैसे करेंगे? यहां तो आप पॉलिटिकल फेवरेटिज्म करने बैठ जाएंगे। और इसको लेके बहुत डेवलपमेंट्स भी हुए। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, दीज आर नथिंग बट असिस्टेंट्स टू मिनिस्टर्स, एंड दीज असिस्टेंट्स आर नथिंग बट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 2018 में ईसीआई के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने 20 एमएलए डिस्क्वालीफाई करे थे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, कि भाई आपने इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा था। दूसरा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर एटलीस्ट 20 स्टेट्स जहां पे ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे रहे हैं। तो इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पहली बात मतलब क्या है, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कल को कोई बोले जी हम तो सिर्फ एडवाइजर है गवर्नमेंट के, कोई बोले हम तो सिर्फ वेलविशर है, शुभचिंतक है, हम तो कंसल्टेंट है कोट अनकोट गवर्नमेंट के। दैट इज व्हाई द जुडिशरी गेट्स इन एंड स्टार्ट्स गिविंग यू व्हाट कुड बी कंसिडर्ड एज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल लेजिस्लेशन में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज द लॉ क्लियरली डज नॉट डिफाइन इट। तो सबसे पहले कहानी 1968 में शुरू होती है उमराव सिंह वर्सेस दरबरा सिंह में, जिसमें कोर्ट बहुत क्लियरली कहता है कि 3 कंडीशंस है। एक, आपने ऑफिस होल्ड किया गया है। दूसरा, वो ऑफिस प्रॉफिट का है, मतलब कुछ मिलेगा आपको, और वो ऑफिस सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। अशोक भट्टाचार्य वर्सेस बिस्वास 1985 और दोबरे वर्सेस दोबरे में एक बात कही गई कि कितने हद तक आपके ऑफिस में गवर्नमेंट कंट्रोल है ये भी मैटर करेगा। हेगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दिस इज एन एजुकेशन जो इज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल देयर, 1993 का केस है, जिसमें कहा गया कि हाँ, कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये जरूरी है। सिर्फ प्रेस्टीज की बात है, उससे कुछ नहीं होगा कि हमने आपको एक सिंबॉलिक पोस्ट दे दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। आपको जया बच्चन का यूपी वाला केस भी याद होगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, because she was also holding a parallel post. Then you have what is called Gulam Chand versus Hotilal versus Bahadur in 1958. मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये भी हो सकता है कि साल में एक बार मिले, 6 महीने में एक बार मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैज टू बी सम रेगुलरिटी ऑफ इनकम। एंड देन यू हैव द इशू ऑफ गुलाम चंद वर्सेस ठाकुर सिंह इन 53। इसका मतलब द होल्डर ऑफ द ऑफिस मस्ट बी यूनिक, सुई जेनरिस, ऑफ देयर ओन काइंड। इसका मतलब यू शुड बी एबल टू बी कॉम्पिटेंट टू होल्ड दैट ऑफिस। अगर आप उस ऑफिस को ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहे हो तो बात ही खत्म हो गई। और अगर एक ही केस लिखना है तो आपको बोर्दोलोई का केस लिखना है 2001 का, जिसमें कोर्ट ने बहुत क्लियरली कुछ टेस्ट्स इन सबको कंबाइन करके दे दिए। पहले कहा कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट का आपके ऑफिस पे कंट्रोल होना चाहिए, और चौथा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तभी तो प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको क्या इशू होना चाहिए।
और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा अगर आप कोई गवर्नमेंटल फंक्शन में हो वाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है? सेकेंड एआरसी ने कहा है कि एडवाइजरी बॉडीज को इंक्लूड मत करो। ऑफिस वैसे जिनकी पास एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर है, पब्लिक फंड्स पे कंट्रोल है, दे शुड बी ट्रीटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें पॉलिसी से लेके एक्सपेंडिचर सब होना चाहिए। And if the office holder is the head or the member of such an organization, जिसका काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखने की जरूरत है, जिसका काम लाइजॉन करने की जरूरत है, जिसका काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव स्मूथली काम करे, उसको इंश्योर करने की जरूरत है, तो उसको जबरदस्ती ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मत मानो। बट इट इज समथिंग दैट नीड्स अटेंशन, क्योंकि ये चुपके चुपके ज्यादा स्टेट लेवल पे तो बहुत ही होता है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। I have quoted Professor Achari here also, and I've quoted him on the topic of whips also, and the conclusion is इसको आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखना पड़ेगा। इट कांट बी अ होलसम प्रॉब्लम कि हम तो ऐसे ही करेंगे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे। It should always be very rationally decided as to what comes to a sensible conclusion as to what is to be included under office of profit and what is to not be included under office of profit. तो basic कहानी ये है। Now we move to the issues, the notes that I have uploaded today. You will find them on the Telegram channel itself. अब इसके बाद we will start with the next set of issues which are here. हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स से, देन बाइकैमरलिज्म, एंड देन वी विल डू विप्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, एंड वी विल स्टार्ट। यू कैन प्लीज टेक द नोट आउट। MCN नंबर 50। चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद द ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अब इसमें दो तीन बातें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका PYQ रेफरेंस हमने ऑलरेडी कर रखा है। 2023 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स पूछा था। 2022 में रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द राज्यसभा चेयर पूछा था। इससे पहले 2020 में पूछा था, विच इज बेसिकली द रोल ऑफ द स्पीकर। तो 2025 में स्टेट लेवल पे तो आना लो प्रायोरिटी है, और इसको करने का एक हमने तरीका सीखा है कि हम सबसे पहले एक कॉमन सेट ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे फॉर ऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, एंड देन स्पेसिफिक वंस फॉर स्पीकर, फॉर डिप्टी स्पीकर एंड राज्यसभा चेयर। अब करंट में कैसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्पीकर्स टाइमलाइन फॉर एंटी डिफेक्शन। 17th लोकसभा खत्म हो गई, नो डिप्टी स्पीकर हैज बीन इलेक्टेड। 18th लोकसभा चल रही और अभी तक एज ऑन डेट डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं हुए। उम्मीद है शायद मॉनसून सेशन में हो जाए, बट लेट अस सी। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन तीन तरह का है। पहला, मैंने आपको एक स्पीकर के रोल पे कोट दिया है। दिस इज द कोट गिवन बाय नेहरू व्हेन ही वाज अनवीलिंग पटेल स्टैचू इन March 1948, and he said, Nehru sir said, the speaker's position should be free, should be honored, and should be represented by men of outstanding ability and impartiality, as the speaker represents the house and therefore represents the nation's freedom and liberty. ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली रोल बेस्ड है। दूसरा करंट अफेयर्स बेस्ड है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर अनाउंस नहीं हुए। तीसरा ये है, नीलम संजीवा रेड्डी हु वाज वन ऑफ द मोस्ट फोर्थराइट स्पीकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, कि उसमें उन्होंने बताया है, एक कोट बोला था उन्होंने 1968 में, द रोल ऑफ द स्पीकर इज टू इनेबल द हाउस एंड नॉट शट इट। तो सबसे पहले हम स्पीकर क्यों होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्यों होते हैं किसी भी हाउस में, उसका रैशनल समझेंगे।
और उसका रैशनल समझने के लिए तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। देखो आर्टिकल्स 93 टू 96 ऑफ द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 64 एंड 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऑफिसेज को इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक प्रोसीडिंग जो हो वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट रहे हाउसेस के अंदर। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी। स्पीकर्स को हम इस तरह से देखते हैं दैट दे आर इम्पार्शियल आर्बिटर्स, मतलब कि वो हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको फेयरली, डिग्निटी से, डेकोरम से कंडक्ट करेंगे। और तीसरा, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल ऑलवेज बी अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। देखो, जहां पे माइनॉरिटी की भी आवाज सुनी जाए, ऑपोजिशन को भी मौका दिया जाए और मेजॉरिटी का जो रूल है वो अपहोल्ड किया जाए, अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक डायलॉग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ये बेसिक रैशनल है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का। ना, जो कॉमन सेट ऑफ यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं जो सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे लगेंगे वो ये है। एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला, द वेरी पोजीशन ऑफ आवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। See, Article 100 very clearly says that you have an equality of votes. मतलब जब तक टाई नहीं होगा तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वोट नहीं करेंगे। एंड जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की सैलरी और अलाउंसेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे इनकी न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी को और स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा रोल हाउस के कुछ प्रोसेसेस में है। और यहाँ आपको अपने पॉइंट्स में वो सब कुछ लिखना है जो सब लिखेंगे और कुछ यूनिक चीजें लिखनी है। जैसे हाउस तभी चलेगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह पे कोई बैठा हो। कोरम है, नहीं है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड नहीं कर रहे तो हाउस की सिटिंग नहीं होगी। दूसरा, हाउस का जो सिटिंग है वो कब कितने टाइम पे शुरू होगा, कब खत्म होगा, अगर मुझे सिटिंग अडजर्न करनी है, अगर कोरम नहीं है तो सिटिंग सस्पेंड करनी है, कोई भी मोशन, कोई भी रेसोल्यूशन, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कट मोशन हो, वो आपकी वो एडमिट होगा या नहीं होगा, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में होता है। देन आप अगर हाउस में कोई भी पिटिशन लाना चाहते हो, उनकी कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। कौन से अमेंडमेंट्स हमको एंटरटेन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, अगर कुछ फ्रिवलेस है तो उनको छोड़ देना है। जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एक पैनल होता है, और पैनल जनरली 10 होता है, कई बार 6-7 में ही काम चल जाता है। पैनल में जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट करने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं। इसके अलावा दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। डिसिप्लिन का मतलब हाउस को एक तरीके से, एक लहजे से चलाना, मेंबर्स को रिकग्नाइज करना कि कौन बोलेगा, कितने समय तक बोलेगा, अगर कोई प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन रेज करता है कि नहीं ये तो गलत तरीके से हो रहा है तो उसको रिकग्नाइज करना, अगर हाउस में कुछ अपशब्द बोले गए हैं, कुछ गलत बातें बोली गई हैं तो उनको ऑफिशियली हाउस के रिकॉर्ड से हटा देना, टू एक्सपंज थिंग्स विच आर ऑब्जेक्शनेबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, टू इंश्योर कि अगर कोई मेंबर ऐसे हैं जो हद ही पार कर रहे हैं, so you can ask them to withdraw from that particular sitting for that time being। ये सारी डिसिप्लिनिंग पावर्स दे रखी है। एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इज एन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी चेम्बर। तो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है किस ऑर्डर में होगा, कैसे होगा, लीडर ऑफ हाउस के साथ कंसल्ट करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उस पर फॉलो अप होगा, कुछ क्वेश्चन बैलेट से लिए जाते हैं, किस ऑर्डर में होंगे, कौन रिकग्नाइज किया गया है उस पर, अगर फर्दर डिबेट करना है, सप्लीमेंट्री पूछना है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना है, डिबेट्स कैसे होने हैं, प्रोसीडिंग्स कैसे होने हैं, ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं।
And then they also have, very importantly, some quasi judicial powers. एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिसाइड करना, प्राइमा फेसी कोई कंटेम्प्ट या प्रिविलेज का इशू है या नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जब जजेस को रिमूव करना होता है तो कमिटीज बिठाई जाती हैं, दोस कमिटीज कंटेन जूरिस, सीनियर जजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जजेस इंक्वायरी एक्ट पे प्रोसीजर दे रखा है, उसको हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। बट वो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करने का काम इनका है। हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स का इंटरप्रिटेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देते हैं, और इनकी इंटरप्रिटेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम प्रेसिडेंट्स। या तो वो कन्वेंशन की तरह फॉलो किए जाते हैं, या उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, फॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड अगर कभी कभी ऐसा हो कि जैसे कोई लेजिस्लेशन है, कोई बिल पेंडिंग है, उस पर कुछ अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स पास हो गए हैं, जो अब उस बिल में कुछ पेरेंट चेंजेस करने होंगे, वो वहीं की वहीं स्पीकर ही कर देते हैं। प्रेसिडेंट के पास बिल भेजने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करके भेजते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से पास हो गया है, अब आप असेंट देना है नहीं देना है आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। ओवर एंड अबव दिस, ये कन्वेंशन है जो धीरे धीरे रूल्स में भी फॉर्मुलेट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, ह्यूमन राइट्स डे होता है, एनवायरनमेंट डे होता है, कुछ रिमेम्बरेंसेस होते हैं, कोविड के टाइम पे भी, अब व्हेन यू वांट टू टेक अ 2 मिनट साइलेंस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पार्लियामेंट में हिरोशिमा नागासाकी डे पे भी रेफरेंसेस दिए हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ऑफ द हाउस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव 3 मिसलेनियस फंक्शंस। आप अपने हाउस के सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं। दूसरा, जब भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एक्ट में कोई चेंजेस होते हैं, उसके उस एक्ट के अंडर अगर रूल्स में कोई चेंजेस होते हैं तो उनको कंफर्म करने की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। प्रेसिडेंट से आने वाला कोई कम्युनिकेशन और प्रेसिडेंट को करने वाला कोई कम्युनिकेशन, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के थ्रू ही होता है। दे आर द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द हाउस। तो इससे आपके आंसर में एक बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। देन what are the special points that you will write if the question is on the speaker? अब इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शब्द है स्पीकर इज अ वेरी पैराडॉक्सिकल वर्ड। Technically, the speaker never speaks on the floor of the house unless you're discharging the duties of the speaker. लेकिन नाम आपने स्पीकर रखा हुआ है। तो स्पीकर की कुछ स्पेशल पावर्स क्या हैं? पहला, मनी बिल सर्टिफाई करते हैं, जॉइंट सिटिंग्स में प्रेसिडेंस होती है। तीसरा, पार्लियामेंट्री कमिटीज इनके सुप्रीम कंट्रोल में होती है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इसके ये चेयरपर्सन होते हैं, इसके डिफैक्टो हेड होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो स्पीकर के पास ही और किसी के पास नहीं है। देन यू वुड हैव व्हाट आर सम स्पेशल थिंग्स अबाउट द डिप्टी स्पीकर। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में एक बहुत बेसिक फर्क है, अगर इस साल एग्जाम में आता है तो ध्यान देना है। द डिप्टी स्पीकर इज अ फुल टाइम मेंबर। इसका मतलब जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम नहीं कर रहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो वो एक ऑर्डिनरी मेंबर है, वो अपना काम कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। तो जिस दिन स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं उस दिन आपको इसमें घुसना ही नहीं है कि क्या डिप्टी स्पीकर तब भी चुप बैठे, कि ऐसा नहीं है। डिप्टी स्पीकर इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द हाउस। वो सारी पॉलिटिकल डीलिंग्स करेंगे, वो सबसे बात करेंगे, वो सबसे इंटरेक्ट करेंगे। ये स्पीकर नहीं करता। अगर स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं देन दे डोंट बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी मेंबर। आपको कभी भी, अगर स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर रहे तो आपको स्पीकर कभी भी हाउस के चेंबर में बैठे हुए नहीं दिखेंगे, डिप्टी स्पीकर जरूर दिखेंगे। एक फंडामेंटल डिफरेंस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में इतना होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात डिप्टी स्पीकर की है कि इट इज अ प्रैग्मेटिक ऑफिस। अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन स्पीकर ही आके प्रिसाइड कर पाएंगे। टेक्निकली हम तो साल में 3 बार मिल रहे हैं, सेशंस, बजट, मॉनसून, विंटर, 3 तो होते हैं। ऑन एन एवरेज कम से कम 100-150 दिन तो हाउस सिटिंग में बैठेगी ही बैठेगी। 100-150 दिन कैसे एक ही आदमी प्रिसाइड कर सकता है? There's a very good chance that you would require somebody else to fill in.
स्पीकर के अपने कमिटमेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, 10 तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जो डिप्टी स्पीकर का ऑफिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव, कि हाउस का काम रुके ना। एंड यू प्रिसाइड ओवर, स्पेशली एज द डिप्टी स्पीकर, द हाउस बजट कमिटी एंड द प्राइवेट मेंबर बिल्स कमिटी, जो आपकी उसमें लोकसभा में होती ही होती है। एंड देन ये इसलिए भी करते हो, देखो कन्वेंशनली स्पीकर का जो ऑफिस है वो रूलिंग पार्टी के पास जाता है, और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस ऑपोजिशन पार्टी के पास जाता है। तो कई बार कुछ ऐसे डिबेट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सो देयरफॉर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इट मेक्स सेंस। देखो कोई टाइम लिमिट तो नहीं दी है कि डिप्टी स्पीकर को आपको अभी का भी अपॉइंट करना है, बट इफ यू एक्चुअली रीड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 93, इट इज फेयरली क्लियर यू हैव टू अपॉइंट देम एज सून एज पॉसिबल। अब वो एज सून एज पॉसिबल में आप कुछ भी जोड़ लीजिए। देन कम्स व्हाट आर सम स्पेशलिटीज ऑफ द राज्यसभा चेयर। राज्यसभा चेयर की खास बात यह है कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पसेस कमेटी, इनके तो आप चेयर होते ही होते हैं। ये उस कमेटी का पार्ट होते हैं जो प्रेस काउंसिल के चेयरपर्सन को चुनते हैं। जैसे जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर एनएचआरसी के रिक्रूटमेंट में और लोकपाल के रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है। सिमिलरली राज्यसभा के चेयर भी कुछ इस तरह से काम करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली, राज्यसभा के जो चेयर होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को, कुछ यूनिवर्सिटीज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, द हज कमिटी, प्रेस काउंसिल, संसद कोड ऑफ विश्व भारती, इन सब में राज्यसभा मेंबर्स को एज एज मेंबर्स अपॉइंट किया जाता है। एंड यू ऑल्सो नॉमिनेट राज्यसभा मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड द बॉडीज फॉर द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, सेंट्रल सोशल प्लानिंग बोर्ड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हिंदू शिक्षा समिति एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। तो ये बहुत स्पेशल रूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चेयर करते हैं। तो ये तो हमको बहुत क्लियर हो गया। ये हमारा प्राइमरी ढांचा हो गया कि ये होता क्या है, करते क्या है। भाई इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो एक जैसी हैं, कि हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्या है हमारे स्पीकर के साथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम। मैंने आपको 5 बेसिक प्रॉब्लम्स दे दी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज व्हाट वी जनरली कॉल इट टू बी इज पार्टीजन बिहेवियर। ये सबसे कॉमन है। कैसे कॉमन है? कि आपको हमेशा दिखेगा कि स्पीकर्स आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, बट दे आर नेवर ए पॉलिटिकल बाय नेचर। तो कहीं ना कहीं वो बायस रहता ही है। मैं आपको बहुत सारे केस स्टडीज भी दूंगा अभी। एंटी डिफेक्शन में डिलेस करते हैं। मनी बिल को, एक ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर देते हैं तो राज्यसभा बाईपास हो जाता है। क्या स्पीकर का डिसीजन है वो जनरली आप चैलेंज नहीं कर पाते, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनली रूल भी नहीं किया है। और क्योंकि हाउसेज में इतने डिस्ट्रप्शंस होते हैं, इतना मिसबिहेवियर होता है, इतना मतलब मेहम होता है, कि आप अपना काम ही ढंग से नहीं कर पाते। अब इन पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने को कुछ केस स्टडीज चाहिए, कुछ अच्छे केस स्टडीज चाहिए, कुछ खराब केस स्टडीज चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अ गुड केस स्टडी इज नीलम संजीवा रेड्डी रिजाइन फ्रॉम द नेटिव पॉलिटिकल पार्टी इन 1969, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का ऑफिस कंटेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कंटेस्ट करने के टाइम पे ही छोड़ दिया ताकि कोई बायस ना हो। इसी टाइम पे 1968-69 के टाइम पे वेस्ट बंगाल और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही लंबे समय तक अपने हाउसेज अडजर्न रखे, जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव वैक्यूम हुआ। पंजाब में तो इतना बुरा हाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि उनका बजट रुक गया था, क्योंकि पंजाब के स्पीकर ने तो 3 महीना ही बंद कर दिया था। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स दिस कंट्री हैज एवर सीन, Somnath Chatterjee, who was a speaker during the 14th Lok Sabha. He was, I think, a member of the Communist Party of India, CPIM, या आई थिंक उनके थे या उस टाइम पे। तो न्यूक्लियर जब डील का इशू हुआ था उस टाइम पे 2008 के आसपास में, तो न्यूक्लियर डील पे अलायंस थी। अब सीपीआईएम और कांग्रेस का जो जो कॉमनैलिटी थी, वो अग्रीमेंट टूट गया कि नहीं नहीं, सीपीआईएम ने कहा कि नहीं ये न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती।
उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तो होके ही रहेगा। एज द स्पीकर ही हैड टू बी न्यूट्रल। इनकी पार्टी ने इनको कहा कि नहीं, आप इसको कंडक्ट नहीं करेंगे, आप प्रोसीडिंग्स होने नहीं देंगे, बट सोमनाथ चैटर्जी कंडक्टेड दोस प्रोसीडिंग्स विद utmost ग्रेस एंड utmost न्यूट्रलिटी। इससे ऑलमोस्ट इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। he was disregarded and boycotted from his parent party, but जो काम किया सो काम किया। sometimes you have to pay a price। similarly ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब सुमित्रा महाजन जब लोकसभा की स्पीकर थी, उन्होंने आधार बिल को मनी बिल क्लासिफाई किया था। ये कैसे किया, क्यों किया, क्या सोच के किया, आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव भी चलाया था, तो बहुत अच्छी बात थी। So there have been good and bad things. Hamid Ansari साहब, who was the Vice President of India around 2013, उन्होंने जीरो आर कैसे अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए, उसके उन्होंने अपने हाउस में कुछ कंस्ट्रेंट्स निकाले थे, कुछ प्रोसीजर्स निकाले थे। उन्होंने अपने डिफेक्शन, अगर उनके टेन्योर में कोई डिफेक्शन के केसेस राज्यसभा में आते, तो उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज्ड 3 मंथ डेडलाइन भी बनाई थी। एक हमारे पुराने राज्यसभा के चेयर हुआ करते थे KR नारायण, आप जानते होंगे, ही इन ओरिजिनली स्टार्टेड विद द होल आइडिया ऑफ डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड्स, जो आज की डेट में वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट पार्लियामेंट्री वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। अब ये तो हमारी केस स्टडीज डोमेस्टिक हो गई, कुछ हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं। तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहले इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या होता है, जब भी कोई स्पीकर बनता है तो वो अपने पेरेंट पार्टी से अपने सारे नाते तोड़ देता है, एंड जनरली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं, वो वहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन सीक करता है, और जनरली वो जो इलेक्शन होता है वो अनकंटेस्टेड ही होता है, ताकि न्यूट्रलिटी रहे। ऑस्ट्रेलिया में स्पीकर जो भी रूलिंग्स करते हैं वो हमेशा डिस्कस की जाती हैं, उस पर डेलिब्रेशन होता है। कनाडा में जो डिप्टी स्पीकर के ऑफिसेज होते हैं वो पार्टीज में रोटेट होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही तो ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। एंड न्यूजीलैंड में स्पीकर्स को एक प्रॉपर रिटन कोड ऑफ कॉन्डक्ट वेरी क्लियरली दिया जाता है। सॉल्यूशंस में हमें क्या क्या करना चाहिए? 1, यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो इलेक्शन है स्पीकर का या जो चेयरपर्सन का, इसमें कितना भी हो सके ऑपोजिशन का कंसेंसस हो। ये हालिम कमेटी और 170th लॉ कमीशन ने भी बोला है। स्पीकर को मैंडेटरीली अपनी पेरेंट पार्टी से रिजाइन करना चाहिए, जो यूके में होता है। केशव मिंगचंद्रा सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर वाला केस है ये, इसमें 3 मंथ की डेडलाइन कोर्ट ने बोल रखी है, हमने एंटी डिफेक्शन से रिसाइकल करा। जो भी एंटी डिफेक्शन केसेस हैं, अगर हो सके तो इसका एक रिव्यू एक ओवरसाइट जुडिशियल ट्राइब्यूनल से होना चाहिए। जितना पॉसिबल हो आप शेयर करो चेयरिंग ड्यूटीज ऑफ द डिफरेंट सेशंस और सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ग्रेटर रोल होना चाहिए डिप्टी स्पीकर का। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि डिप्टी स्पीकर को हम अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो जनवरी 2025 का आर्टिकल है जिसमें रेकमेंड किया है कि यू शुड हैव एटलीस्ट कि 60 दिन के अंदर, विद इन 60 days यू आर अपॉइंटिंग द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर, एंड देन देयर आर सम कोडिफिकेशन, कुछ तो हो, आप अपने पावर्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक जगह पे लाके तो लिख दो, ताकि काम थोड़ा ढंग से हो जाए। नाउ कम्स द कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज फेयरली सिंपल। कंक्लूजन ये कहता है कि एज द इम्पार्शियल कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेटिव इंटेग्रिटी, द स्पीकर और चेयरमैन embodies the very spirit of rule of law, fair deliberation, and institutional balance. Again, bring it back to democracy. In a democracy where the majority governs and the minority must be heard, the presiding officer ensures that both power and restraint coexist within the house. तो ये हमने इसका एक सिंपल सा बढ़िया सा बना दिया। सिमिलर लाइंस पे आपको बाइकैमरलिज्म और राज्यसभा का रोल एक जगह मैंने एक पेज में कर दिया है। हाई प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन हमको बिकॉज यू हैव टू कवर ऑल बेसिस, ये बहुत रिस्की है छोड़ के जाना, इसलिए हम पढ़ के जाएंगे।
इंट्रोडक्शन, दो चीजें हैं। पहला, बहुत ध्यान से देखना, द काउंसिल ऑफ स्टेट सिग्निफाइज फेडरल बाइकैमरलिज्म थ्रू आर्टिकल 79 एंड 80। द वर्ड इज फेडरल बाइकैमरलिज्म। और दूसरा, मैंने आपको हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ध्यान से समझना, कि ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में द आइडिया ऑफ अ सेकंड चेंबर केम इनटू बीइंग। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इट हैड अ लिमिटेड हाउस जो 5 साल में डिसॉल्व होती। 1935 एक्ट में जो सेकेंड हाउस जिसको एनविजन किया था, वो एक अनलिमिटेड हाउस थी, कंटिन्यूड हाउस थी, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। मतलब वो एक अलग टेंजेंट पे थी। लेकिन वो 1935 का जो फेडरल कॉन्फेडरेशन वाला एंगल था, जो उसके जो एस्पिरेशंस थे कि हम सेकंड चेंबर बनाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पार्ट बनेंगे, वो कभी हुआ ही नहीं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे, उनके पास कोई रियल रेफरेंस था नहीं सेकंड चेंबर के लिए। तो बहुत काम उन्होंने खुद से बाकी पार्लियामेंट्स की, बाइकैमरल इकोसिस्टम्स की स्ट्रक्चर्स को पढ़ के सीखा, और कहा कि अच्छा, बाइकैमरलिज्म इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, फेडरल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है, और हमने उस तरह से इंपोर्ट किया। जो भी हमारे बाइकैमरलिज्म के प्राइमरी जस्टिफिकेशंस हैं, वो क्या है, हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। why do you even have the concept, why do you even have the idea कि भाई हमारे पास तो 2 हाउसेज होने ही चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। इसकी कहानी यह है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टू चेक हेस्टी एंड इल कंसीव्ड लेजिस्लेशंस। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। लोकसभा इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। उनको अपना मैंडेट बचाने के लिए और अगली बार के लिए अपना मैंडेट सिक्योर करने के लिए उनके बस में जो होगा, जैसे होगा, जितना होगा, वो करने की कोशिश करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे विल डू वट एवर इट टेक्स टू वट एवर एक्सटेंट इट कैन बी डन। सी, अ सेकेंड चेंबर, very carefully, it facilitates a second look at legislations that sometimes may be because of purely political compulsions. And having a two legislative body at the center, you will have more talent, you will have more expertise, you will have a wider scrutiny of legislative proposals and ideas and suggestions. So, therefore, it is keeping a check on hasty populist legislations that may or may not be needed. Secondly, आप अगर look at legislatures world over, almost every legislature anywhere in the world is struggling with pressures to keep up with newer areas of law, with pending laws, with things in the pipeline. So, in a scenario like this, a second chamber therefore becomes much more useful कि आपने कोई बिल यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया, एटलीस्ट काम कहीं तो शुरू हुआ। थर्ड, a second chamber will always give you more opportunities for scrutiny. It will create a more enabling atmosphere where you can actually question the government. यहां तो कोई नो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां तो ये नहीं है कि अगर आपने मिनिस्टर से 4 सवाल मुश्किल के पूछ लिए तो अगले दिन आप पे नो कॉन्फिडेंस लग जाएगा, कट मोशन हो जाएगा बजट पे, अजर्नमेंट मोशन ले आएंगे, सेंसर मोशन ले आएंगे। यहां आप खुल के बिना डर के एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं। फोर्थली, a second chamber therefore can hold issues, can hold debates, can hold discussions on a very wide range of issues, and you can take advantage of people who are experts. This is the house of elders, which means there will be people with more public experience and more ground knowledge than maybe people in the Lok Sabha. So that is why Rajya Sabha is a very, very apt organization to have better quality of debates. And fifthly, it can legitimately hold itself as the guardian of federal interests
or state interests in a polity like ours. देखो, because you're giving representation to components which are at the state level. Rajya Sabha members are elected by elected members of legislative assemblies. So what is represented at the Rajya Sabha is effectively federal interest. And it is very important because laws which are made by the parliament have an all India impact. If a law which is made by the parliament has an all India impact, then at least somebody from the constituent state units should have a say in the impact that the all India law has. And which is why bicameralism makes sense. And it makes sense all the more for a country like India. India, therefore, has a bicameral national parliament. And this is why the historical background can be whatever it is. We needed to have what it is. So then becomes the larger question, what is the role? Why are you doing this? There are some basic rules. First, your job as a revisionary house. आप ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको समझते हैं. See, the Rajya Sabha has a very special role as the revising house. The number of times they've tried to revise bills or amend bills are not very many, but they have been very, very significant in their own right. मैंने आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे इनकम टैक्स, अभी एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 बिल भी है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, डीलिमिटेशन बिल, अनलॉफुल एक्टिविटीज, बहुत सारे लॉज हैं जिनको राज्यसभा ने एक्टिवली रिवाइज करा है, एक्टिवली उसको डिस्कस करा है. लैंड एक्विजिशन, जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. Secondly, the role as a federal chamber. See, you are having representatives of each states, which means you are going to be representing federal interests. इसलिए राज्यसभा को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए स्पेशल पास दी है, टू ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट 249 में स्पेशल पास दी है, टू अप्रूव अ नेशनल इमरजेंसी. अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा के अप्रूवल से चल जाएगा. जब भी लोकसभा का अगला सेशन हो उसके 30 दिन के अंदर उनको अप्रूव करना होता है. विल डू दिस इन सेंटर स्टेट. ये स्पेशल पावर दे रखी है. Then as a deliberative chamber, you have to nominate 12 members which will bring excellent quality of debate, excellent quality of standards. And this is also very important. The party-wise composition in the Rajya Sabha changes at a very, very slow pace. Because जैसे जैसे स्टेट के इलेक्शन चेंज होंगे वैसे वैसे राज्यसभा में वो रिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन whenever there is a vacancy. So you can always have good sound debates, and at the end of the day it is still representative of legislative continuity. ये कभी डिसॉल्व ही नहीं होते. क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होते and 1/3 of its members retire every year, you are able to ensure गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कुछ बिल्स आप प्रिजर्व कर सकते हो. टेक्निकली कोई भी बिल जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो और वो लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं हो, is a bill which is going to be there in perpetuity. It is an infinite bill, which is why a bill which is pending in the Rajya Sabha, which has not been passed in the Rajya Sabha, will not lapse because the Lok Sabha is dissolved. The Rajya Sabha does not make or unmake the government. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में majority है या नहीं constitutionally, which means they can have sound debates in national interest. Then it is a smaller house. Smaller house, which means more people get to participate, which means more opportunity, which means deeper debates and so on and so forth. And at the end of the day, you are able to ensure that people are able to bring in their grassroots experiences from the state and ventilate their grievances, which becomes again very, very important in their own right. आप देखिए, we've had prime ministers from the Rajya Sabha also. For example, Indira Gandhi, when she became the prime minister for the first time, she was a Rajya Sabha MP. Manmohan Singh was a Rajya Sabha MP. Our foreign minister today is a Rajya Sabha MP. Shri Arun Jaitley was a Rajya Sabha MP. Because a lot of times you may not be a great politician, but you might be a great statesperson. So a lot of times you would want to have this as an outlet to secure quality people. ये तो है ही है. And then comes the issue कि हमारे राज्यसभा के साथ problems क्या हैं. The first problem is आपको इतना सोबर हाउस बनाया है, तब भी आपके यहाँ डिस्ट्रप्शन इतना क्यों हो रहा है? इतनी बेसिक प्रॉब्लम तो है ही है. और ये खासकर 1990s से थोड़ा ज्यादा बड़ा है. राज्यसभा has experienced, in my view, a very disturbing trend of very, very frequent disruptions.
इसकी वजह से बहुत बार कैंसिलेशन हुआ है क्वेश्चन आवर का, बहुत बार लेजिस्लेटिव बिजनेस स्टॉल हुआ है। इससे जो लॉ मेकिंग की क्वालिटी है उस पर बहुत डेंट पड़ा है। इनफैक्ट बिल्स हैव रेयरली बीन पास्ड विदाउट डिस्कशन। जब मैं आपको पार्लियामेंट का एक यूनिवर्सल डेटा सेट दूंगा, आपको उसमें दिखेगा। इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं हाउस की, मेजर होता है कि कितने बिल कितने समय तक पास हुए। एक टाइम पे राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी वाज ऑलमोस्ट 100% बिफोर 1990s। अब हम 40% भी नहीं कर पा रहे। एक टाइम था इन द रिसेंट 10-15 years or so when M Venkaiah Naidu was the chair of the राज्यसभा, तब थोड़ी सी 2017 to 2022 जब राज्यसभा थोड़ा सा इम्प्रूव करा था। बट ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इट हैज नॉट बीन अ वेरी वेरी इफेक्टिव हाउस। इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है, इन 2016 द राज्यसभा हैज नॉट बीन एबल टू टेक अप द फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल फॉर डिस्कशन ओनली। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, माना आपके पास पावर नहीं है लेकिन डिस्कस तो कर ही सकते थे। अब दूसरा इशू है, राज्यसभा में पार्टीजन पॉलिटिक्स भी आनी शुरू हो गई है। There was a leader of opposition, a very senior member, who said something very very inappropriate, जिसकी वजह से बहुत मेजर इश्यूज हुए हैं, बहुत मेजर फॉल आउट्स हुए हैं, राज्यसभा ही डिस्टर्ब हो गया। See, generally what happens is most members in the Rajya Sabha will come from a degree of political lineage. ये ऐसे भी होंगे कि there a lot of them would be defeated candidates in the Lok Sabha elections. तो इसकी वजह से ये भी कई बार सोचा जाता है कि कहीं राज्यसभा एक डिस्ट्रक्शनिस्ट चेंबर तो नहीं है, मतलब वहां बैठी ही कलेश करने के लिए कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, हम बिल ही नहीं पास करने देंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ तो राज्यसभा में भी लगता है, तो पार्टी लाइंस के तो आपको तब भी वोट करना पड़ेगा। तो आप एक इंडिपेंडेंट रिवाइजिंग चेंबर कैसे बने? एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा में लगाने की क्या जरूरत है जब आपका पॉलिटिकल मेजोरिटी से कोई लेना देना ही नहीं है? द थर्ड इशू इज अनडेमोक्रेटिक एंड अनरिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन। चलो 12 मेंबर्स तो हैं जो आपने बिना इलेक्शन के चुन लिए, आपने डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हटा दी। राज्यसभा एक फेडरल रिप्रेजेंटेटिव चेंबर है, लेकिन आपको स्टेट से होने की जरूरत नहीं है राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए। तो आपने जो राज्यसभा का प्राइमरी कैरेक्टर था वो डाइल्यूट कर दिया। एंड राज्यसभा में भी धीरे धीरे यू आर नाउ सीइंग मेंबर्स विद क्रिमिनल केसेस इंक्रीजिंग। एंड कंपेयर्ड टू द लोकसभा, द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर्स, नो कॉन्फिडेंस, कट मोशन, मनी बिल्स, ये सब नहीं हो सकते। तो अकाउंटेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। एंड राज्यसभा को अपने आप में स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल इश्यूज तो है ही है। कंपेयर्ड टू द लोकसभा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्टाफ इज लिमिटेड, सेक्रेटेरिएट इज लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे, विच इज वाई वी नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो सोल्यूशंस क्या हुए? पहला, स्ट्रक्चरल डोमिसाइल रिक्वायरमेंट आप अभी की अभी जितना हो सके इसको रीइंस्टेट करिए। जैसे यूएस मॉडल है, हर स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंट करने की बात भी हो सकती है। पुंची कमीशन ने कहा है जब आज आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर मानते हो, सो व्हाई डोंट यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एंड ऑल्सो हैव मेंबर्स फ्रॉम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिटिंग इन द राज्यसभा विद यू, बिकॉज लॉज विल अल्टीमेटली हैव द मोस्ट इम्पैक्ट इन द ऑन द ग्रासरूट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज, अगर आप कहते हो कि एमजी नरेगा में सोशल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की है, ग्राम सभा करती है, तो फिर एमजी नरेगा तो सेंट्रल लॉ है ना, तो वो सरपंच का राज्यसभा में बैठना बनता है कि नहीं बनता है? दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द एनालॉजी दैट यू शुड बी ड्रॉइंग इन योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। एंड यू शुड रिफॉर्म योर एंटी डिफेक्शन लॉ एंड से कि भाई राज्यसभा के मेंबर्स को बोलो कि आप अपने आप वोट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। You should also allow Rajya Sabha to at least have some substantial say in money bills. ये ओवरराइडिंग वाली बात ही खत्म कर दी। मतलब कम से कम एक जॉइंट सिटिंग तो परमिट कर दो, कुछ तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Money at the end of the day, we are a unitary federal country, finances are going to have an implication, so it has to be done accordingly. And then limited powers. A no confidence motion cannot be introduced in the Rajya Sabha restricting its function. अगर ऐसा है, which means you have to try and make it more and more accountable. कैसे?
एटलीस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा को भी तो वो डिस्कस करने के लिए अलाउ करो। इसी पॉइंट को आपको यहां इनहांस करके लिखना है, एटलीस्ट अलाउ डिस्कशंस। ठीक है, एंड देन यू गिव योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट विच इज दिस: in an age where majoritarian tides often are when majoritarian tides often sweep swiftly, sorry, through lower houses, Rajya Sabha offers what is called a vital pause, a chamber of second thought where law is refined, not rushed, diversity is represented, not diluted. For democracy is not merely about decisions taken, but the way in which those decisions are debated, scrutinized, and refined. And in that journey, Rajya Sabha is not just a speed breaker, it is constitutional conscience. ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब इसके बाद हम कमिटीज, इलेक्शंस और विप्स, बिकॉज दे हैव एन इंटरसेक्शनैलिटी इन्वॉल्व, कैसे मैं समझा दूंगा, वो करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द हाउस। तो विप्स, कमिटीज, इलेक्शंस, स्ट्रक्चर, डेलीगेट लेजिस्लेशन विल पिक अप द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी दीज लेक्चर्स आर वेरी टारगेटेड फॉर द मेंस, एंड अगर रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है तो मैं तो बिल्कुल पढ़ा के छोड़ूंगा। ऐसा मीन्स में क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए जो अनफेमिलियर हो, जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, लगे रहते, कीप एट इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।